वेलकम टू पाकिस्तान एकाउंटिंग के एग्रीकल्चर इंटरव्यू सीरीज में जहां हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से सीखेंगे पाकिस्तान के ज़रूरी माशियात के बारे में। आज हम बात करेंगे जीशान हसीब बेग से, जो कि सीईओ हैं सिजेंटा पाकिस्तान के। सिजेंटा एक ग्लोबल एग्री साइंस लीडर है जो पाकिस्तान में ज़राअत के हर पहलू, सीड क्वालिटी, क्रॉप प्रोटेक्शन और फार्मर सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। जीशान का कैरियर टेलीकॉम और टेक इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ, लेकिन उनका पैशन है एग्रीकल्चर को इनोवेशन के जरिए ट्रांसफॉर्म करना। उनकी लीडरशिप में सिजेंटा ने फीमेल लेड एग्री बिजनेसेस, ड्रोन स्प्रेइंग और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीटेक ऐप क्रॉप वाइज लॉन्च की है। आज के एपिसोड में हम उनसे जानेंगे पाकिस्तान के मेजर क्रॉप्स को कौन सी चैलेंजेस दरपेश हैं, एग्रीटेक और सीड इनोवेशन का क्या रोल है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, और किस तरह यूथ और वुमेन फार्मिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। Assalamu alaikum and welcome. मेरा नाम जुनैद इकबाल है and welcome to Pakistan and Counting. Today we are being joined by Zishan Haseeb Beg, who is the CEO of Syngenta Pakistan. Zishan, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें join करने का. Thank you. Thank you very much, Junaid, and thank you for inviting me in this forum. To begin with, Zishan, शुरू करते हैं आपके background के साथ, अपने professional journey के बारे में बताएं, and then we'll get to agriculture. Absolutely. I think you're pretty much aware with my background, but I am. वो भी हम बात करेंगे. But I've been born and raised in an AFUS family. जैसा typically फौज में AFUS वगैरह में होता है different cities. So I've almost traveled entire country. Education मेरी वही PF schools, cadet colleges से हुई. I did my engineering from FAST, telecom में. And उसके बाद I did some work in the telecom sector, mainly Ericsson में in Pakistan. 3 साल के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं I'm more of a commercial guy. So I started applying for MBA. I got into LUMS. So LUMS से MBA किया. और MBA, हर MBA की ड्रीम होती है टू गेट इनटू कंसल्टिंग. सो हमने भी मजाक में अप्लाई कर दिया इनटू अ कंसल्टिंग कंपनी. सो आई गॉट इनटू इट और आई एंडेड अप लैंडिंग इन डिलॉयट इन द मिडल ईस्ट ऑफिस. सो आई वर्क विद देम फॉर गुड 6 years, जिसमें वी डिड लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन मिडल ईस्ट, US, UK, बट प्राइमरली फोकस्ड ऑन टेलीकॉम, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी. और हर 5-6 साल बाद मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट चाहिए. So 2016-17 में actually I ended up deciding. I talked to my father. I'm very close to my father. So वो काफ़ी ज़रा उदास थे. So उनकी उदासी देखते हुए मैंने I ended up sending my resignation to my boss. So उनकी मुझे से कॉल आई ये क्या कर रहे हो and all of that. But eventually I made sure कि I had made my mind and I resigned. Without knowing कि पाकिस्तान आगे करना क्या है. And this is a time जब वो नया पाकिस्तान भी बन रहा था. A lot of people wanted to come back to Pakistan as well. So I was one of them. और Deloitte में I was doing pretty well. In fact, they were sending me to US और वो फिर आगे green card and all of that. But I thought this is the time because I'm the only son, so I had to be closer to my parents. आगे सब कुछ बैग शैग लेके पाकिस्तान. Fortunately, I had a good network पाकिस्तान में, LUMS की वजह से. So one of my friends, Umar Zabit, Junaid, you know him very well. So I think he mentioned me, there's an opportunity there. और उस तरह हमें I remember he connected me to you. And if you can still remember, मैं अपनी वो resignation और wrapping up कर रहा था when you came to Dubai from San Francisco. That's where we met. Things worked out well, and we started in 2017. कुछ अर्से बाद ही, almost साल बाद 18 में you took another role within Careem. So I took charge of Careem Pakistan. और उसके बाद it was a journey. It was a roller coaster ride. COVID आया, बहुत crisis भी देखे. But eventually lots of great learnings and great stories to tell. I can talk about that in length. But interestingly, I think I'll tell you कि Syngenta से मेरा connection कैसे हुआ. So 2018 Uber acquisition के बाद हम सब ने थोड़ा right left invest करना शुरू कर दिया into startup. So there was one startup called Taza at that time. Agritech का startup था, and this is 2021, start of 2021. So मुझे किसी ने कहा जी उनको हेल्प करनी है इन रेजिंग फंड. सो आई वाज सपोर्टिंग देम थ्रू वन ऑफ माय पार्टनर्स इन डेलॉयट हु वाज आल्सो बेस्ड इन यूएई. सो उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया. उन्होंने कहा जी एक कंपनी है सिंजेंटा. आई डिडंट नो अबाउट सिंजेंटा बाय द वे एट दैट टाइम. इट्स अ बिग कंपनी. दे हैव अ वीसी आर्म एज वेल. व्हाई डोंट यू टेक द स्टार्टअप टू देम. सो इवेंचुअली उन्होंने कनेक्ट करवाया. स्टार्टअप ने पिच किया. वी हैड अ गुड डिस्कशन. नथिंग रियली मटेरियलाइज्ड. महीने बाद मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए. द पर्सन हु वी हैड मेट, और वो मेरे बारे में पूछना शुरू हो गया. सो इट वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी कि ये मुझे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वेदर इज फंड इन दैट स्टार्टअप और नॉट. So basically that's how it started. It was a funny story. So
eventually he told me, we're looking for a country GM for Pakistan. I had no experience of agriculture. As a Pakistani, thoda bahut pata hota hai sector, it's a huge sector. But other than that, I had zero experience. So eventually, fast forward, after a round of interviews, I got into Syngenta January 2022. Up to 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, and 3 years have been a roller coaster ride. In 3 years, our business is almost 2x, and not only in the core business, but हमने जो transformation की है in, I would say, in agriculture sector, that's phenomenal. And I think today we'll get an opportunity to talk about many of those things as well. So I think that's mainly it. With that, Junaid, over to you. Thank you, Zishan. And of course, we work very closely together. I was fortunate to have you in my team at Careem, and you performed exceptionally well. तो जो हमारे viewers हैं, मैं उन्हें recommend करूँगा जाके ज़ीशान को follow करें LinkedIn पे, and जो ज़ीशान का journey है, अगर आप think about it, purely homegrown, undergrad भी और business school भी पाकिस्तान में करके, he's done great value addition for global companies. तो अब now telecom से ride hailing / tech, और वहाँ से अब agriculture. To begin with, let's talk briefly about, अब आपको 3 साल हो गए हैं एग्रीकल्चर स्पेस में? 3 years, बिल्कुल. एक ले ऑफ द लैंड दें कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर स्पेस है, how would you summarize it, in a few sentences? बिल्कुल. I think जुनेद, अगर देखें एग्रीकल्चर स्पेस जो है ना, so it is by far the largest sector after services in Pakistan. देखिए 20% of our GDP is agriculture. आपकी तकरीबन 40% जो workforce है is associated with agriculture. So I think that's the overall scale of the agriculture. Now, if I compare it to tech sector, even for that matter FMCG sector, so I think the baseline is very very low. किसी भी चीज़ को आप देखेंगे ना, so the room for improvement is huge. So I think that was one of my observations. बाकी अगर देखें agriculture में ज़ाहिर है there's livestock, there's crops की बात करें तो overall पूरा सेक्टर अगर $70 billion का सेक्टर है, तो इसमें से मेजॉरिटी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम क्रॉप्स. उसमें भी हमारी मेजर क्रॉप्स जिस तरह हैं, वी आर डूइंग कॉटन, वी आर डूइंग राइस, शुगर केन, wheat and corn. So these are the 5-6 major crops of Pakistan. उसके अलावा आई थिंक छोटे लेवल पे वी डूइंग a lot of vegetables, high value crops as well. उनके ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है. But I think in summary it's a huge sector. आज भी मुझे 3 साल हुए, I still feel there's a lot that I need to learn. अभी मुझे लगता है मैंने सिर्फ सरफेस को एक्सप्लोर किया, बट अगेन अ सेक्टर वेयर पीपल लाइक अस कैन मेक ह्यूज डिफरेंसेस, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह टुडे. और मे बी वी बिगिन बाय टॉकिंग अबाउट दैट, जो आपने स्टेज सेट किया है कि बार बहुत लो है, रादर आई थिंक द वर्ड यूज के बेसलाइन बहुत लो है, हर सेगमेंट में देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. तो ऐसा करते हैं, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद लेट्स से क्रॉप प्लानिंग, एंड देन वील गो टू इनपुट्स, एंड देन वील गो डाउनस्ट्रीम. तो पहले थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं कि क्रॉप प्लानिंग किस तरह आइडियली होनी चाहिए, इंस्टेड कैसे हो रही है. बिल्कुल सही है. अच्छा जुनेद, कुछ बाय द वे कुछ बड़े स्ट्राइकिंग फिगर्स हैं, सो मैं आई कीप ऑन टेलिंग दिस टू एवरीवन, मैं हैमर करना चाहता हूँ सो दैट एवरीबडी इन द कंट्री अंडरस्टैंड. सो आई विल टॉक अबाउट दोज थिंग्स एंड देन वील टॉक अबाउट क्रॉप प्लानिंग एज वेल. सो आई थिंक देखें, सबसे पहले तो हमें, इफ एवरीबडी कैन रियलाइज, वो हम फूड सिक्योरिटी की बात करते थे ना, सो वी आर ऑलरेडी एट अ वर्ज जहाँ पे हम this is a crisis. अगले 30 साल में we have to feed 135 million people more in Pakistan. ठीक है, सेम ज़मीन है, सब कुछ सेम है, यील्ड्स एक्चुअली हमारी बड़ी स्टैगनेंट है, और हमने, आप सोचें 50% मोर पॉपुलेशन को हमने फीड करना है, और आज के दिन भी हम वीट इम्पोर्ट कर रहे हैं, राइट. सो दैट्स अ काइंड ऑफ क्राइसिस वी आर टॉकिंग अबाउट. ग्लोबल अगर आप हंगर इंडेक्स देखें, सो इसमें वी आर एट 109 आउट ऑफ 122 कंट्रीज. हमारे, we did a research, almost 82% of the children in Pakistan, they lack meals when they want. क्योंकि जब उनको खाना चाहिए उनको मील नहीं मिलता. 82% of the children in Pakistan, and we're talking about almost 35% of stunted growth, children. So I think the crisis is huge. मैंने personally I didn't realize कितना बड़ा होगा until I came into the agriculture sector and realized the importance. Now overall अगर सेक्टर को देखें तो there are lots and lots of inefficiencies. आपने क्रॉप प्लानिंग की बात की, उस पर मैं डिटेल पे आता हूँ, बट ऑन अ वेरी हाई लेवल, अगर मैक्रो लेवल पे देखें ना, तो देयर आर 3, आई वुड कैटेगराइज इनटू 3 चैलेंजेस. एक तो रिसोर्स रिलेटेड चैलेंजेस हो जाते हैं, जिसमें आपकी वाटर, सॉइल एंड लैंड, एंड वील टॉक अबाउट दीज 3 एज वेल. दूसरा, आई थिंक कुछ एक्सटर्नैलिटीज आ जाती हैं,
क्लाइमेट कह लें, वेदर कह लें, ठीक है, जो समवॉट हमारे कंट्रोल में नहीं है. एंड द थर्ड पॉकेट विच आई थिंक जो कि इनएफिशिएंसीज की 80% रिस्पॉन्सिबल है इज़ द मिसमैनेजमेंट, राइट, जिसमें आपकी लो यील्ड्स आ जाती हैं, जिसमें आपकी सप्लाई इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं, आपकी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इनोवेशन आ जाती है, फाइनेंशियल बैरियर्स आ जाते हैं. सो आई थिंक ओवरऑल अगर सेक्टर को इफ आई टू समराइज इनटू व्हाट आर द थ्री बिग बकेट्स जहाँ पे चैलेंजेस हैं, दीज आर द थ्री बिग बकेट्स जहाँ पे चैलेंजेस हैं. अब आपने लैंड प्लान क्रॉप प्लानिंग की बात की. सो आई थिंक दिस इज रिलेटेड टू सॉइल एंड लैंड. सो आई थिंक इसमें देखें दो चीज़ें हैं. एक तो नंबर वन पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें अपनी क्रॉप हेल्थ का ही नहीं पता. आप अगर रूरल एरियाज में चले जाएं, नो बडी वुड नो कि उनकी क्या डेफिशिएंसीज हैं क्रॉप में. सो इन ग्लोबली इवन इन आर नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया की बात कर लें, इवन फॉर दैट मैटर बांग्लादेश, देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज थ्रू ड्रोन्स जहाँ पे वो अपनी सॉइल के देखते हैं कि जी किस चीज़ की डेफिशिएंसीज हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है या सर्टन यूरिया की रिक्वायरमेंट है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे वुड डू द स्प्रेज और यूज इनपुट्स. सो आज वो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है. सो आई थिंक एक तो सॉइल हेल्थ. दूसरा अगर लैंड की बात करें, दो चीज़ें हो रही हैं. एक तो ज़ाहिर है जनरेशन बाय जनरेशन लैंड डिटोरिएट कर रहा है, साइजेस फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं, एंड इकोनॉमिकली इट इज़ प्रूवन इफ देयर इज एनी लैंड विच इज़ लेस देन 5 acres इट इज़ इकोनॉमिकली अनवायबल, राइट. सो हमारे एवरेज साइजेस लैंड इतने ज़्यादा श्रिंक कर रहे हैं. सो सर्टनली वी मस्ट डू समथिंग. जहाँ तक क्रॉप प्लानिंग की बात कर लेते हैं, अब देखें पाकिस्तान की, जैसा मैंने मेजर क्रॉप्स आपको बताई, दिस कॉटन, दिस राइस, दिस शुगर केन, कॉर्न हो गया. अब क्रॉप बाय क्रॉप अगर आप देख लें प्लानिंग में, इसमें देयर लॉट ऑफ गैप्स एंड विच आई थिंक पॉलिसी इंटरवेंशंस के थ्रू अ लॉट ऑफ दोज कुड बी सॉल्व्ड. अगर हम राइस की बात करें, राइस अमेजिंग क्रॉप, एक्सपोर्ट कर रहे हैं $4 billion की, ठीक है, वेरी वेरी गुड. बट ऑनेस्टली अगर मैं पर्सनली बताऊँ ना, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट अग्री टू दिस. राइस आई थिंक इज अ वेरी वेरी डेंजरस क्रॉप फॉर पाकिस्तान. वजह हम देखें, वी आर वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्कार्स कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड डूइंग राइस रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. सो बाय द वे मुट्ठी में अगर आप राइस पकड़ेंगे ना फाइनल, तो उस राइस के लिए 25 लीटर पानी लगा है. सो दिस इज द काइंड ऑफ वाटर यूजेज दैट यू टॉकिंग अबाउट. सो आई थिंक आज के दिन पे तो येस वी सेलिब्रेटिंग कि जी बहुत $4 billion, $3 billion वी आर एक्सपोर्टिंग इट, बट 10 years, ठीक है, राइस will be a disaster, is a liability for us. यूरोप वगैरह में आप देखें, they don't do it, they import it. So I think क्रॉप प्लानिंग में राइस को अगर देखें, उसको we should replace, we should have a long term strategy कि उसको क्या करना है. इसी तरह शुगर केन, दुनिया भर में बीट रूट से शुगर बन रही है. पाकिस्तान में भी स्टिल वही पुरानी शुगर केन चल रही है ना, उससे हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं. सो आई थिंक उसको भी हमें वी शुड सी. कॉटन इज़ अ वेरी गुड क्रॉप, बट सैडली हमारी यील्ड्स जो हैं डिक्लाइन कर रही हैं. इस साल देखें जो लास्ट ईयर आई थिंक 5 million bales के करीब हमने प्रोड्यूस किया. एक ज़माने में एक पीक में हम 12 billion bales करते थे. उसके अलग चैलेंजेस हैं, सीड के काफ़ी चैलेंजेस हैं, आई टॉक अबाउट दोज एज वेल. सो इसी तरह बहुत सारी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल आई नो फॉर अ फैक्ट चाइना में दे आर लुकिंग फॉर सेसमी. इसी तरह मिडल ईस्ट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बहुत डिमांड है, ज़ाहिर उनके पास लैंड नहीं है. सो आई थिंक वी शुड एज अ कंट्री वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट वेरियस क्लस्टर्स जोग्राफिकली, जहाँ पे वेरियस हाई वैल्यू क्रॉप्स के ऊपर काम हो रहा हो, और इवन एग्जिस्टिंग क्रॉप्स के ऊपर. आई वुडंट से कि इनको हमें खत्म करना है, डेफिनेटली इनमें इंप्रूवमेंट हमें लेके आनी है, बट वी शुड ऑल्सो हैव अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कि इनको हमने हाउ डू वी रिप्लेस दैम, जो कि अगर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज एब्जॉर्ब कर रही है. आई थिंक हमने बहुत ज़बरदस्त जो ले ऑफ द लैंड को डिफाइन किया है, ख़ास तौर पे क्रॉप्स में. एंड जो शुगर और राइस में चैलेंज ये भी आ रहा है कि इवन साउथ में, इवन सदर्न एरियाज में इन क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है जहाँ पर पानी कम है, और एक कनाल नेटवर्क के थ्रू होता है. एक तो रिवर के अपने लॉसेस हैं, फिर कनाल में भी अपेरेंटली 30-40% पानी एवेपोरेट हो जाता है या सीपेज आ जाती है, और फिर जब फार्म पर पहुंच भी रहा है तो अपेरेंटली फ्लड इरिगेशन की जा रही है, जिससे मजीद सो इफेक्टिव एफिशिएंसी की जो पानी इस्तेमाल हो रहा है शुगर पे भी और राइस पे, जितना पानी एक्चुअली उस क्रॉप पे लग रहा है उससे 2x वेस्ट भी हो रहा है वहां तक पहुंचने के लिए. सो अब आप इन ग्रुप्स और सर्कल्स में बैठे हुए हैं, आर देयर कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग ऑन अ पॉलिसी लेवल? क्योंकि फ्रॉम एन इंसेंटिव परस्पेक्टिव तो जो शुगर मिल्स हैं वो भी उनका जो ताल्लुक है वो पॉलिटिकल पावर से भी होता है. तो जो इंसेंटिव्स हैं वो तो अलाइंड हैं टुवर्ड्स encouraging more sugar output, even though it is coming at the expense of poor water management. तो क्या इस पर कोई बातचीत हो रही है गवर्नमेंट लेवल पर, प्राइवेट सेक्टर लेवल पर?
देखें जुनेद, आई थिंक आई वुड से गवर्नमेंट लेवल पे ज़ाहिर है कुछ चीज़ों पे काफ़ी काम हो रहे हैं, बट दिस इज़ मोर ऑन अ माइक्रो लेवल. ठीक है कि कॉटन की शॉर्ट टर्म में कैसे बढ़ानी है यील्ड, उसके पीछे सोइंग अर्ली करवा लें, मल्टीपल चीज़ें हैं, राइस की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है. सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, जिस कैपेसिटी में मैं भी एंड आई एम पार्ट ऑफ क्वाइट अ फ्यू डिस्कशंस विद द गवर्नमेंट एज वेल, ज़्यादातर ना आई थिंक शॉर्ट टर्म मेजर्स के ऊपर काम हो रहा है. सो 1 year 2 year, बट आई थिंक व्हाट वी नीड इज मोर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. सो अगले 10 साल में हाउ वुड द एग्रीकल्चर लैंडस्केप लुक लाइक, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें. ज़ाहिर है गवर्नमेंट के भी तरह कंस्ट्रेंट्स. सो मैं आपको बताता हूँ R&D की अगर हम बात करें तो इंडिया का लेट्स से R&D बजट जो है ना एग्रीकल्चर का इज ऑलमोस्ट 0.2% ऑफ देयर GDP, जो कि कितना बन गया, ऑलमोस्ट 12 बिलियन डॉलर के करीब बन गया, 12 अरब डॉलर. पाकिस्तान का जो है इज अराउंड 0.2% ऑफ आर GDP, विच बिकम्स व्हाट 700 लेस देन $1 billion, राइट. सो $1 billion लेट्स से वर्सेस 12-13 बिलियन डॉलर, 12x की बात हम कर रहे हैं. सो आई थिंक एक तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक जो डिस्कशन है, जो फॉरवर्ड लुकिंग डिस्कशंस है, आई थिंक वो थोड़ी सी लैकिंग है, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट की भी रिसोर्सेज के चैलेंजेस हैं. दे आर सो मच इनटू इन्फोर्समेंट कि उनके लिए ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इज नॉट हैपनिंग एज इट शुड बी. सो वो आई थिंक दैट्स वन थिंग. सेकेंडली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स. आप किसी भी कंट्री को उठा लें, इवन बांग्लादेश, इंडिया, मैं इनकी एग्जांपल्स बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी पीपल, योर व्यूअर्स वुड बी एबल टू रिलेट टू दीज कंट्रीज, बड़े सिमिलर लोग हैं हमारी तरह के. सो वहाँ पे स्पेशली मल्टीनेशनल्स और जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, नॉट ओनली उनकी इन्वेस्टमेंट्स कंट्रीज में करवाई इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप R&D फैसिलिटीज, बट ऑल्सो गवर्नमेंट पार्टनर्स एक्टिवली विद दैम. सो बहुत सारे इनिशिएटिव इंडिया में ऐसे चल रहे हैं जो कि उन्होंने प्राइवेट कंपनीज के साथ किए हैं. सो फॉर एग्जांपल BT कॉटन सीड इंपोर्ट कराया मोनसैंटो के साथ मिलके इन 2002. आज के दिन देखें तो हमारी इंडिया में कॉटन हालांकि पाकिस्तान से कम हो रही है, लेकिन यील्ड देखें तो हमसे 30-35% ज़्यादा है, राइट. सो बिकॉज सीड वेराइटी उन्होंने कोलैबोरेट किया विद वन ऑफ द मल्टीनेशनल्स एंड दे ब्रॉट इट टू पाकिस्तान. सो आई थिंक मैनी ऑफ दीज थिंग्स कैन बी डन इन पाकिस्तान, बट आई फील दिस इज अ बिग गैप जो कि है इस वक्त. शान, इसको आगे लेके चलते हैं सीड्स की तरफ. अब सीड्स में जो फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड हेल्प अस आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंड दिस बेटर, कि जो जिन मुल्कों में ज़्यादा यील्ड्स आ रही हैं उसकी एक की वजह सीड्स है, या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स इस्तेमाल हो रहे हैं या हाइब्रिड सीड्स इस्तेमाल हो रहे हैं. इट सीम्स, एंड आई नो कि सिंजेंटा का भी मेन बिजनेस सीड्स से रिलेटेड है. इट सीम्स के सीड मार्केट में बहुत चैलेंजेस हैं, रेंजिंग फ्रॉम certification time and so on and so forth. So give us a lay of the land कि सीड मार्केट में पाकिस्तान में क्या हो रहा है. बिल्कुल बिल्कुल जुनेद, I'll do that, and I think it's a very important question because जाहिर है सीड से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, पूरा सेक्टर ही सीड से स्टार्ट हो रहा है. Which also reminds me, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, every third tomato in Pakistan and every fourth watermelon in Pakistan, in fact globally, is Syngenta seed, right? So I'm sure there's a good 25% chance when you have your dinner tonight, so आपको Syngenta का सीड टोमेटो उसमें इस्तेमाल हो रहा है. एक्सेलेंट. बट एनीवेज आई थिंक सीड्स की तरफ वापस आते हैं. सो आई थिंक देखें सीड्स में ना देयर मल्टीपल चैलेंजेस. एक तो ज़ाहिर क्वालिटी एंड पुअर जर्मिनेशन रेट्स हैं जनरली हमारे पास जो सीड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो मेजर क्रॉप्स के ऊपर, आई वुड से वीट एंड एज वेल एज कॉटन के ऊपर. सो रिलेटिव टू आर नेबरिंग कंट्रीज आर जर्मिनेशन रेट्स आर वेरी वेरी लो. जर्मिनेशन डिटर्मिन करता है कि जी आउटपुट कैसी होगी बेसिकली, ठीक है, फॉर अ सर्टन सीड. सो आई थिंक एक तो वो बड़ा चैलेंज है. हमारे पास देयर इज अ वेरी लिमिटेड एक्सेस टू सर्टिफाइड सीड्स. सो सर्टिफाइड सीड्स वो हैं जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किए हुए हैं या कोई MNC लेके आई हुई है. आई मीन दीज आर रिकग्नाइज सीड्स. सो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट आप समझें सर्टिफाइड सीड्स का यूजेज जो है ना इज लेस देन 25%. वेयरएज अगर नेबरिंग कंट्री में देख लें तो 50% प्लस, 45 to 50% प्लस, राइट. सो विच शोज के इतनी फ्रेगमेंटेड सीड्स की मार्केट है. एंड आई डोंट नो कितनी सारी सीड कंपनीज हैं जो अनरेगुलेटेड भी हैं. सो पीपल आर एक्चुअली यूजिंग अ लॉट ऑफ सीड्स विच आर नॉट सर्टिफाइड. सो एक तो ये है. दूसरा, हमारे लोकल जो फैसिलिटीज़ हैं टू डेवलप सीड्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन R&D के ऊपर भी बात करेंगे, दैट इज़ आई वुड से रिक्वायर्स मेजर इंटरवेंशन. आज के दिन फॉर एग्जाम्पल अ मल्टी नेशनल इन पाकिस्तान इज़ नॉट कंफर्टेबल डूइंग लोकल प्रोडक्शन. उसका रीज़न ये है, एंड देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड इट. एट सम पॉइंट इन टाइम सम ऑफ द मल्टीनेशनल्स ट्राई टू ब्रिंग देयर टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान, और उनके जो DNA सीड का, बेसिकली जब भी सीड की टेक्नोलॉजी आएगी ना तो DNA इंट्रोड्यूस होता है.
सो डीएनए गॉट थेफ्ट और वो चोरी हो गया एंड मल्टीनेशनल नेशनल के लिए आई थिंक दैट इज़ द मेन थिंग. सो कोई पेटेंट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी या आईपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता. देर इज ऑन पेपर्स बट उसके ऊपर कोई इन्फोर्समेंट नहीं है. सो आई थिंक दैट्स अ बिग बिग ब्लॉकर जिसकी वजह से सीड इनोवेशन नहीं आती है. दूसरा ये भी है कि देखें बहुत सारे पॉलिसी एंड रेगुलेटरी गैप्स भी हैं. सो फॉर एग्जांपल आज के दिन वीट एंड कॉटन कैन नॉट बी इम्पोर्टेड. सो इसमें हाइब्रिड सीड्स नहीं हो सकते इन द नेम ऑफ फूड सिक्योरिटी कि जी हमारा लोकल टॉपिक है, इट्स फूड सिक्योरिटी, वी शुड डू इट locally. Yes, we should do it locally, but we should set the capability to do it. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्या हो जाएगा कि बाहर का सीड आएगा वो एंड क्या कोई एग्जांपल्स हैं दूसरे मुल्कों की जिसमें उन्होंने को बाहर से वीट का या कॉटन का सीड इंपोर्ट किया और कोई सॉइल खराब हो गई फॉर जनरेशंस टू कम. क्या इसके पीछे थिंकिंग क्या है या कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखें जुनेद, आई थिंक थिंकिंग जो ऑन द फेस ऑफ इट जो थिंकिंग है वो यही है कि जी हमारी डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल कंपनीज या एक्सटर्नल वर्ल्ड बढ़ जाएगी तो हमें खुद करना चाहिए. वेयर एज इट इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट. आप पाकिस्तान में मैं एक बता देता हूँ एग्जाम्पल, कॉर्न की एग्जाम्पल. सो कॉर्न बिकॉज ब्लाइंड स्पॉट था, बहुत छोटी क्रॉप थी कुछ सालों पहले, 10-12 साल पहले, तो गवर्नमेंट वॉजेंट बॉदर्ड. सो अभी भी जितनी छोटी क्रॉप्स है ना, वेजिटेबल्स वगैरह, उनके सीड्स इंपोर्ट हो रहे हैं. सो लॉट ऑफ मल्टीनेशनल्स स्टार्टेड इंपोर्टिंग देयर सीड्स. और आज जो कॉर्न की यील्ड है पाकिस्तान में इज प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट इन द रीजन्स, right? So and this happened in the period of 8 to 10 years, only because this was very unregulated. Import हुए hybrid seeds and corn अगर आज देखें तो it is doing phenomenal, right? So same I think wheat को भी देखें और cotton को भी देखें, I think the same thing should happen. एंड ऑन द अदर एंड वीट पे एक तरफ जो रिलायंस की बात कर रहे हैं तो दोनों वीट और कॉटन हमें एंड प्रोडक्ट तो इंपोर्ट करना पड़ रहा है पिछले कुछ सालों में. Absolutely. ऑफ कोर्स वेरिएशन है बट इन सम इयर्स तो हमने ऑलमोस्ट $1 बिलियन की वीट एंड में इंपोर्ट कर ली डिस्पाइट द फैक्ट कि चारों सूबों में वीट ग्रो हो सकती है. बिल्कुल ऐसे ही है जुनेद. आई थिंक देखें इसमें वन रियलिटी इज ऑल्सो के ज़ाहिर है देयर इज गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, कि जो लोकल आज के दिन प्रोवाइडर्स हैं, सीड प्रोवाइडर्स, ठीक है, इन क्रॉप्स के ऊपर स्पेशली वीट और कॉटन के ऊपर कर रहे हैं, या इवन फॉर दैट मैटर जो लोकल R&D हो रही है गवर्नमेंट लेवल पे, दैट गेट्स इम्पैक्टेड बिकॉज अ हायर बेंचमार्क विल बी रेज्ड, राइट? सो माय एडवाइस टू द गवर्नमेंट इज ऑलवेज कि एक तो आप इनोवेशन रोके ना. इनोवेशन देखें किसी भी चीज़ में, हमने टेक सेक्टर में काम किया, इनोवेशन विल नेवर स्टॉप. किसी ना किसी तरीके से वो आ जाएगी. और अगर इफ यू ट्राई टू स्टॉप इट देन आपको पता है कोडैक जैसी कंपनीज की भी क्या हिस्ट्री है, राइट? सो आई थिंक सेम थिंग अप्लाइज फॉर गवर्नमेंट. दे शुड बी ओपन टू इनोवेशन. दे शुड एक्चुअली प्रमोट दीज कंपनीज टू ब्रिंग इन देयर बेस्ट टेक्नोलॉजीज. हाँ, बट उस पर करें ये कि कैपेबिलिटी बिल्ड करें, अपने R&D स्पेंड को थोड़ा बढ़ाएं. अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह ये कॉटन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग करें. सो इन मल्टीनेशनल से इन्वेस्ट करवाएं, इनकी फोकस पाकिस्तान लेके आएँ एंड अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग के ऊपर काम करें. ऑटोमेटिकली जो लोकल प्रोडक्शन है उसका लेवल भी बाहर रेज हो जाएगा. बट इनेटली इस प्रोसेस में भी अगर लेट्स से गवर्नमेंट R&D स्पेंड बढ़ा भी देती है अपना, बजट से भी एलोकेशन मिल जाती है, इनेटली दिस इज एन इनएफिशिएंट प्रोसेस. ज़्यादा बेहतर नहीं है कि इसको इंस्टेड गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन पे या IP प्रोटेक्शन पे या क्वालिटी की इंश्योरेंस की तरफ ज़्यादा जाए एंड एज अपोज टू दैट मार्केट को फ्री मार्केट्स की तरफ लेके जाएं? लाइक इजंट दैट व्हाट शुड हैपन? 100% जुनेद. जहाँ पे भी देखें मेरी कोई भी डिस्कशंस होती है ना विद द गवर्नमेंट, सो आई कीप ऑन टेलिंग देम वन थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट डीरेगुलेट द मार्केट. खुद ही सारी चीज़ें अपने नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी. द फोकस शुड बी लुकिंग एट दीज प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स लॉक करें, उनकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लेके आएँ, उनको एश्योर करवाएं कि देयर टेक्नोलॉजी विल नॉट बी स्टोलन, हैव द राइट गवर्नेंस एंड प्रोसेसेस अराउंड इट, एंड साथ अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग करना शुरू करें, राइट? ऑटोमेटिकली जब एंड मार्केट को डू नॉट इंटरवीन इन द मार्केट, लेट सप्लाई एंड डिमांड मैनेज बाय देमसेल्व्स. सो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें विल स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग एंड वील सी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स. एंड ये ऐसा नहीं है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इज गोइंग टू हैपन इन एनी कंट्री. एवरी कंट्री हैज़ गॉन थ्रू दिस प्रोसेस. आप डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह को भी देख लें, यूरोप में आप देख लें, सेम थिंग. आप इंडिया में उठा लें, बांग्लादेश में उठा लें. सो द मोर गवर्नमेंट ट्राइज टू रेगुलेट, स्पेशली जैसा प्राइसिंग एंड सपोर्ट प्राइसिंग एंड ऑल ऑफ दैट, it actually is counterproductive in my view. Absolutely. It makes sense. I mean, हमने recently जो series की थी अपनी energy sector में,
अब जब हम एग्रीकल्चर को स्टडी कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा पैरेलल्स हैं, जिस तरह एनर्जी में आप स्टार्ट करते हैं जनरेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, फिर उससे एंड उसके बाद जो सारी आपकी पॉलिसीज़ हैं ऑन प्राइसिंग। सिमिलरली जब आप एग्रीकल्चर को भी देखते हैं, चाहे इनपुट्स की लेंस से देखते हैं, पानी की लेंस से देखते हैं, हर स्टॉप पे गवर्नमेंट ने एक चेक पोस्ट बनाई हुई है जिसमें गवर्नमेंट खुद रेगुलेटर है एंड गवर्नमेंट ने फैसले की जिम्मेदारी अपने सर पे ली हुई है। और वो एक तो उसकी वजह से रोड ब्लॉक भी हो रहा है और गलत फैसले भी हो रहे हैं। एंड यही ये बात है कि आई थिंक मेज इज सच अ ग्रेट एग्जांपल कि जिस पे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं रहा और वो ग्लोबल के करीब यील्ड्स चली गई हैं। एंड एक ज़बरदस्त सेक्टर है जो प्राइवेट सेक्टर को भी सप्लाई कर रहा है, कॉर्पोरेट्स को सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। लेट्स कम टू अब जो क्रॉप प्रोटेक्शन है, सीड्स तो ऑफ कोर्स इट्स क्लियर कि अगर सीड मार्केट को खोल दिया जाए तो 30-40% यील्ड एनहांसमेंट तो शायद वहीं से आ सकती है। तो अब क्रॉप प्रोटेक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट का बताएं कि इस वक्त आज भी हम काफ़ी आर्केक तरीकों से चल रहे हैं। what are methods that can and should be implemented, and also talk about जो सिंजेंटा वेरियस प्रोग्राम्स रन कर रही है स्पेस में। बिल्कुल। सो आई थिंक अगर जुनेद क्रॉप प्रोटेक्शन को देखें, सो क्रॉप प्रोटेक्शन प्राइमरीली इसमें अगर चैलेंजेस की बात करें ना तो 4-5 चैलेंजेस ही हैं। एक तो नंबर 1 ओवर यूज़ एंड मिस यूज़। सो फार्मर्स की जो एजुकेशन है दैट इज़ वेरी लो। सो यूजुअली होता है ये टिपिकली रूरल एरियाज में आप देखेंगे क्या जो भी चौधरी साहब कर रहे हैं ना, सो एवरीबडी विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट, राइट। सो आई थिंक दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। सो आई थिंक एक जो ओवर यूजेज और मिस यूज हो रहा है पेस्टिसाइड्स का, आई थिंक दैट इज़ अ बिग चैलेंज। आज के दिन पाकिस्तान में 600+ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। मुल्तान XYZ चुंगी और उधर कोई छोटी सी कंपनी घर में बना के भी चल रही होगी। सो इमेजिन द क्वालिटी दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। इसी तरह काउंटरफीट इज़ अ बिग प्रोडक्ट। सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि सिंजेंटा के प्रोडक्ट्स जो हैं कॉपी हो रहे होते हैं। यूजुअली साउथ पंजाब में ये बहुत ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि ज़ाहिर ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर हब भी है उधर, और वो मार्केट में 2 नंबर तरीके से बिक रहे होते हैं। सो आई थिंक काउंटरफीट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड स्पेशली फॉर मल्टीनेशनल्स, बिकॉज ज़ाहिर है जिस तरह मैंने सीड्स की बात की ना कि IP प्रोटेक्शन चाहिए, सो काउंटरफीटिंग प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज मल्टीनेशनल्स। थर्डली आई थिंक एक चीज़ होती है रेजिस्टेंस डेवलपमेंट उसे कहते हैं, रेजिस्टेंस मैनेजमेंट उसे कहते हैं। सो होता ही है बिल्कुल ह्यूमन मेडिसिन की तरह, अगर आप कोई एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा लेना शुरू करेंगे तो आपकी एक रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, आप पे वो इम्पैक्ट नहीं करेगी। सो इसी तरह कोई डिजीज़ आती है क्रॉप पे और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूजेज हो रही है किसी पेस्टिसाइड की, तो उस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनना शुरू हो जाएगी। और ये बड़ा नॉर्मल फिनोमेना है, ये पाकिस्तान में होता है, हर 5-7 साल बाद रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है। इसके लिए एक स्टूवर्डशिप फ्रेमवर्क होता है पूरा, जो कि लॉट ऑफ दीज कंपनीज, गुड कंपनीज हैव द स्टूवर्डशिप प्रोग्राम। सो गवर्नमेंट शुड रियली पार्टनर विद दीज कंपनीज के उसको कैसे स्केल करना है, कैसे एजुकेट करना है ग्रोअर्स को कि किस तरह पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं, उनके स्टूवर्डशिप प्रोग्राम्स की मल्टीनेशनल की बेस्ट प्रैक्टिसेस उठाएं एंड देन जस्ट रेप्लिकेट दोज अक्रॉस पाकिस्तान। एंड लास्टली आई थिंक अगर देखें तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आई वुड से इज लैक ऑफ इनोवेशन इन CP क्रॉप प्रोटेक्शन सेक्टर। कैसे? बड़ा फनीली आई विल टेल यू समथिंग। आज के दिन में एक रूल है कि जी आई मीन गवर्नमेंट सेज कि हमने इनोवेट करना है एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है एंड ऑल ऑफ दैट, बाय द सेम टाइम देयर इज अ पॉलिसी रूल विच सेज कि एक कंपनी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट रजिस्टर करा सकती है, राइट। अब बायोलॉजिकल वाई इज इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम बात करें ना ऑर्गेनिक फूड और residue management, so biological products are very very important as we go forward. Europe has actually moved towards these products. So Syngenta, for example, we have a portfolio of 50 products globally, let's say. हम सिर्फ पाकिस्तान एक ला सकते हैं, right? And we have products जो कि इंश्योर करते हैं resistance against climate, weather conditions. और ये देखें पाकिस्तान का इतना बड़ा चैलेंज है। सो इमेजिन अगर इसको थोड़ा सा ईज आउट करें इन पॉलिसीज़ को और इनोवेशन के ऊपर रियली सोचें, सो लॉट कैन बी डन। सो हम अपने क्लाइमेटिक चैलेंजेस को भी टू सम एक्सटेंट वी कैन सॉल्व देम। ज़ाहिर है 100% नहीं हो सकते, नेचर के सामने नोबडी कैन फाइट, बट इफ दीज कंपनीज हैव दीज प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट थोड़ी सी इनोवेशन इनकरेज करे बाय चेंजिंग दीज पॉलिसीज और लॉज, आई मीन लॉट कैन बी डन। सिमिलरली ड्रोन्स, राइट। सो ड्रोन्स आज कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती, एंड क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इफ़ यू वांट टू सेव कॉस्ट फॉर द फार्मर्स और लेबर की जिस तरह आगे शॉर्टेज आ रही है, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A lot of countries have actually adopted it. इंडिया में इंडिया does that, उनकी अपनी policies हैं।
इसी तरह अडेप्शन टू टेक्नोलॉजी की बात करें तो पाकिस्तान में इज़ वेरी वेरी लो. सो जैसे मैंने ड्रोन्स की बात की, सैटेलाइट इमेजरीज के थ्रू बहुत कुछ हो रहा है. सो इनफैक्ट चाइना में देयर वाज अ कंपनी, आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम, बट बेसिकली व्हाट दे डिड वाज उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया यूजिंग ड्रोन्स एंड सैटेलाइट इमेजरीज ऑन राइस क्रॉप कि जी हम इनको ड्रोन्स के थ्रू स्प्रेइंग करेंगे, सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू वील सी कि क्रॉप कैसे मॉनिटर कर रही है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वील ऑल्सो डू पेस्ट स्प्रेज. सो देयर कॉस्ट रिड्यूस by almost 20% on per hectare basis, and their yield improved by 10%, right? And this is just one experiment. Similar stories I can tell about multiple examples from Brazil, India, China. These are few of the countries जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर innovation के ऊपर काम हो रहा है. So I think these are on a high level. These are some of the major pain points. अगर आप ज़ीशान मतलब now that we've been researching this, it looks like कि ऐसे बहुत सारे solutions locally भी आना शुरू हो गए हैं. And ये कि अगर आप one Google search and आपको बहुत सारी companies मिल जाती हैं जो कि ये innovation कर रही हैं, whether high quality seeds दे रही हैं, या वो आपको आपकी soil testing की facilities दे रही हैं, या crop planning में दे रही हैं, या फिर satellite के through. We were talking to a company called Farmdar जो आप I'm sure familiar होंगे. Exactly वो बता सक रहे हैं कि even within the acre कहाँ पर अगर पानी लेवल सही नहीं था, सॉरी ग्राउंड लेवल नहीं था, तो कौन से पार्ट ऑफ दैट एकर में क्रॉप जो है वो ओवरलॉक्ड है या कहाँ पर उसको कम पानी मिला हुआ है. एंड देन उसकी फर्दर एग्जीक्यूशन के ड्रोन कंपनी हो जो उस डेटा को लेकर जाके स्पेसिफिक एरियाज में अगर न्यूट्रिएंट की कमी है वो कर सके. तो अब सवाल आ जाता है एग्जीक्यूशन का. तो एक तो ये है कि जी एक हम अज्यूम करें कि एक बहीमत गवर्नमेंट होगी जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सोचेगी और उन सारी पॉलिसीज को ठीक कर देगी. और मसला फर्दर ये कि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, पर प्रोविंस सब्जेक्ट है, तो रियलिस्टिकली तो ये नहीं होगा. ना ऑन द अदर एंड आपने भी बताया एंड द नंबर्स आर देयर कि जो फार्म होल्डिंग्स हैं वो छोटी होती जा रही हैं. तो जो बड़ा फार्मर है आई वुड अज्यूम कि वो तो खुद ही देख रहा होगा ग्लोबल प्रैक्टिसेस और खुद ही आके ढूंढ रहा होगा. बिग फार्मर वुड बी अ स्पंज फॉर टेक्नोलॉजी. सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन. पहले हम बात करते हैं कि क्या बड़े फार्मर्स जो हैं वो ऑलरेडी इन टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में या नहीं, एंड देन विल गेट टू द स्मॉल फार्मर्स. लेट्स स्टार्ट विद द बिग वंस. बिल्कुल सही है. सो जुनेद अगर देखें अडॉप्टिंग टू दीज टेक्नोलॉजीज इज इनएविटेबल, करना पड़ेगा. रीज़न ये है कि अगर आपने एक्सपोर्ट की बात करें, ग्लोबली कम्पीट करना है आपने, तो योर कॉस्ट शुड बी लोअर बट योर यील्ड शुड बी एट पार एज वेल. सो दिस अ लॉट ऑफ प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, जिसकी वजह से मजबूरी में करना पड़ रहा है. आई एम श्योर अगर खुद से करना होता तो ना करते, लेकिन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर्स दे हैव टू डू इट. मैनी लार्ज ग्रोअर्स इन पाकिस्तान, देयर आर मैनी प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, दे आर यूजिंग इट. सो आई नो जिस तरह जहांगीर तरीन साहब की कंपनीज हैं, दे आर यूजिंग इट. सैफायर ग्रुप के ऊपर काफ़ी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है. मैनी अदर कसूरी फार्म्स हैं, और ऑल ऑफ दीज पैकेजेस फार्म्स हैं, रोशन फार्म्स. सो इन अ लॉट ऑफ दीज इट इज़ हैपनिंग. बट आई वुड से अगर आप आज भी देखें ना, so from a land holding point of view, this would again be, these would be few bigger progressive farmers, but again from a land holding probably 2% of the land holding के ऊपर इस टाइप की innovation के ऊपर काम हो रहा होगा. That is one. Secondly, आज के दिन में cost to get this done, cost to use the technology is very very high. So आपने you gave example of Farmdar, right? So per acre they would charge in dollars, right? And of course I wouldn't blame them also because this is how the technology is. शुरू में हमेशा महंगी होती है, जैसे economies of scale के ऊपर जाती है तो cost per unit goes down, right? So I think the important is cost factor. आज के दिन पे यूज़ हो रहा है, बहुत लिमिटेड लेवल पे यूज़ कर रही हैं कंपनीज, यूजुअली कॉर्पोरेट्स यूज़ कर रहे हैं या बड़े ग्रुप्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत स्केल पे नहीं हो रहा. Yes, there are few plans by the government, जो SIFC Green Pakistan initiative है, and what they plan to do, theoretically it's an amazing plan, and I really hope कि वो materialize भी हो, but I am very bullish about that plan because वो बहुत सारे uncultivated land को basically they'll make a cooperative out of it, और उसके ऊपर mechanization भी होगी, technology भी होगी, all of that. So I think that's something which we are all hoping on. So ये हो गया large farmers की बात. अब प्रॉब्लम ये है कि यूजुअली तो छोटा ग्रोअर बड़े ग्रोअर को देख के, चॉइस को देख के फॉलो करना चाहता है, बट द कॉस्ट टू डू दैट इज वेरी हाई. सेकेंडली सप्लाई. ड्रोन्स की मैं आपको बताता हूँ. सो आज के दिन पाकिस्तान में देयर इज ओनली वन कंपनी
Sapphire, which is offering drones. और उनके पास मेरा ख्याल है 40 to 50 इज द फ्लीट साइज, और वो सिर्फ हमारी कैपेसिटी, सो हम दे पार्टनर्स विद अस, सो हमारी कैपेसिटी नहीं पूरी हो सकती, सो इन वो भी इन अ सर्टेन एरिया. सो दैट्स द काइंड ऑफ सप्लाई वी टॉकिंग अबाउट. जिस तरह करीम के ज़माने में याद है, हम वी वर इनटू बिग सप्लाई क्राइसिस जहाँ पे कैप्टन नहीं मिलते थे, बट वी केम अप विद दिस OC model, and we did something. So I think a lot needs to happen on that front. But Zaira, usme there's some policy intervention that is also required, so that people can bring in, private companies can bring in those innovations. So I think, I think this is the overall landscape when we talk about बड़े growers की बात करें. बट जो छोटे ग्रोअर्स पे देखिए, बड़े पे तो टेक्नोलॉजी ओवर टाइम सस्ती होती जाएगी, और जो बड़े फार्मर्स हैं उनको नजर आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज. ग्लोबली भी मिडल ईस्ट भी फूड शॉर्टेज का शिकार है, एक्सपोर्ट्स में भी बड़े वालों को तो समझ आ रही है. बट एज यू सेड के देयर आर फार एंड फ्यू. अब जो बल्क ऑफ फार्मर है, एटलीस्ट नॉट बाय एकरेज बट बाय नंबर ऑफ फार्मर्स, वो तो छोटे फार्मर्स हैं, और वो बाय जनरेशन छोटे होते जा रहे हैं. वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे. ना नॉलेज, एक तो नॉलेज गैप बहुत ज्यादा होगा, और दूसरा अफोर्डेबिलिटी गैप होगा. तो अब इट सीम्स के बहुत सारी मार्केट्स में, इंक्लूडिंग टर्की, चाइना, टू सम एक्सटेंट इवन इन इंडिया, एक कंसोलिडेशन का भी फेज आया था कि फार्म कंसोलिडेशन शुरू की गई होगी. थोड़ा सा उस पर भी बात करें. एंड ऑल्सो बिकॉज पिछले 15-20 साल में, क्योंकि जो पाकिस्तान में सारा अनटैक्स्ड पैसा है वो रियल स्टेट में गया है, और बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड भी रियल स्टेट में कन्वर्ट हो गया है, तो एग्री लैंड इटसेल्फ इतना महंगा हो गया है कि फॉर समवन टू गो एंड बाय पीसेस ऑफ लैंड फ्रॉम दीज स्मॉलर फार्मर्स एंड क्रिएट लार्ज वेरी प्रोग्रेसिव फार्म्स इज ऑल्सो हार्ड. तो ये तो बड़ी मुश्किल सी इक्वेशन नजर आ रही है कि ऑन पेपर अपॉर्चुनिटीज देयर कि इसको कंसोलिडेट करें, बट कॉस्ट ऑफ लैंड इतना ऊपर हो गया है कि अगर उस कंसोलिडेशन को करने के बाद आप कोई भी जो बड़ा लैंड बैंक लेगा वो उस पर पैसा कैसे कमाएगा, तो इसको कैसे अनलॉक किया जाएगा? बिल्कुल सही. आई थिंक जुनैद राइटली सेड, दो चीज़ें हैं. सो जिससे मैंने बताया ना कि बड़े फार्मर्स के लिए टेक्नोलॉजी थोड़ी सी सेंस नहीं बनाती फ्रॉम अ कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑफ कोर्स दे आर डूइंग इट. बट टेक्नोलॉजी के लिए छोटे फार्मर्स सेंस नहीं बनती, बिकॉज अगर छोटा फार्म होगा तो उसके लिए मैं स्पेशली एक ड्रोन तो नहीं लेके आऊँगा स्प्रे करने के लिए, राइट. सो नेचुरली इसे कहते हैं एग्रीकल्चर के ज़माने कॉर्पोरेटिव्स. सो लॉट ऑफ कंट्रीज, सो मैं एक्चुअली वेंट टू कोरिया. कोरिया इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दैट. कोरिया में होता ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे फार्म्स हैं, बट एक गांव को उन्होंने एक क्लस्टर बनाया होता है. सो व्हेन दिस क्लस्टर, इट्स सॉर्ट ऑफ अ यूनियन, इट क्लस्टर गोज टू अ बिग कंपनी लाइक सिंजेंटा, दे विल परचेज इट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द 500 फार्मर्स, राइट. सो ये इसे कहते हैं कॉर्पोरेटिव की अप्रोच. सो आई थिंक दैट नीड्स टू हैपन इन पाकिस्तान. इसमें two players can play a very pivotal role. One is large growers, they can make consortium in their own geographies अगर गवर्नमेंट नहीं करती. And secondly, I think जहाँ पे ज़्यादा ये expedite हुई है, that is through government intervention. So government had, for example, in those countries, Korea में I know, they had made certain zones कि जी ये कॉटन जोन है. कॉटन जोन में हम 50-500 फार्मर से बात नहीं करेंगे, एक फार्मर आप सेलेक्ट करें जी आपको जो रिप्रेजेंट करेगा. Now imagine if this starts happening in Pakistan, and this is the only solution by the way. उसके अलावा हम जो मर्जी टेक्नोलॉजी ले हैं वो स्केल ही नहीं हो सकेगी, बिकॉज पर यूनिट बेसिस पे इट विल नॉट मेक सेंस फॉर टेक्नोलॉजी कि वो इंडिविजुअल फार्मर्स के पास जाए. सो दिस नीड्स टू हैपन. उसमें आप इमेजिन करेंगे एक फार्मर आएगा एंड दैट फार्मर इज टॉकिंग अबाउट 500 मोर फार्मर्स कि जी हमें ड्रोन्स दें. एंड देन इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर ड्रोन्स कंपनीज एज वेल कि उन्हें पता है कि यार मैंने एक हफ्ता एलोकेट कर देता हूँ, ये पूरा 500 फार्मर्स तो हो गए, राइट. सो आई डोंट हैव टू गो डोर टू डोर. So technology will also start making sense as well. So I think this is extremely important that needs to be done. Natural market forces नहीं डिक्टेट करती हैं at the end of the day. मतलब जो farmers हैं, हो सकता है वो कोई कॉलेज एजुकेटेड ना हो, और इस तरह ट्रेडिशनल सेंस में सब लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि वो जाहिल है, क्योंकि वो एक तरह से अपना एक कारोबार चला रहे हैं और सदियों से चला रहे हैं और इस कारोबार को जानते हैं. और ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने नहीं सुना हुआ होगा इस पॉसिबिलिटी के बारे में. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग व्हाई हैजंट इट ऑलरेडी हैपेंड? आई थिंक जुनैद इसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो है ना पाकिस्तान में इज एब्सेंटीज. ना हो रहा क्या प्रैक्टिकली, लॉट ऑफ दीज फार्म्स, राइट, सो विल बी ओन्ड बाय सम ऑफ द लैंडलॉर्ड. द लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ इज नॉट इनटू फार्मिंग, वो बैठे हुए हैं शहर में, ठीक है. सो दे आर एब्सेंट फ्रॉम द लैंड. उनके मैनेजर्स मैनेज कर रहे हैं.
राइट. एंड मैनेजर इज अ एम्प्लॉय, उनके पास वो कैपेबिलिटी, वो विल ही नहीं होगी. सो आई थिंक इसका एक मेरे ख्याल से एक बड़ा ये सॉलिड रीज़न है कि वो खुद नहीं इन्वॉल्व. जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं बहुत छोटे लेवल पे, और जहाँ पे इन्वॉल्व है वी आर एक्चुअली सीइंग कि दे डू दैट. वो अपने कम्युनिटीज़ में छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बना लेते हैं, बट वी नीड मैनी ऑफ दोज फार्मर्स. सो आई थिंक द आंसर लाइज इन सम सॉर्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो. क्योंकि देखें, जिस तरह इंडिया में भी एक ज़माने में बाय द वे हुआ कि पीपल हु ओन लैंड और खुद से फार्मिंग नहीं कर रहे, either they get taxed or there should be some sort of incentive for them to do the farming by themselves, right? So वो तभी उन पे वो इकोनॉमिक प्रेशर भी आएगा. उनको पता होगा कि जी मैंने आई हैव टू मेक श्योर कि यहाँ से इनकम इतनी जनरेट हो सके कि मैं अपनी सारी कॉस्ट वगैरह पूरी कर सकूँ. आज के दिन सैडली आपने रियल एस्टेट की एग्जांपल दी. इन माय व्यू वन ऑफ द मोस्ट अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, बट पाकिस्तान में ऑफ कोर्स पीपल डोंट थिंक दैट वे. बट यही हो रहा है. सो एग्रीकल्चर जो बड़ा एक लेट्स से एग्रीकल्चरिस्ट है, लैंडलॉर्ड है, दे सिटिंग इन सिटीज़, उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटी भी खोल ली हुई है, और साथ में पीछे उनके जो मुंशी हैं वो मैनेज कर रहे हैं उनके फार्म्स भी. इमेजिन अगर मुंशी फार्म कर रहा होगा मैनेज, तो वो किस किस्म की इनपुट्स यूज़ करेगा, पैसे टॉप इनपुट्स के ले रहा होगा फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यील्ड्स किस किस्म की आ रही होंगी, कितनी उसमें पिल्फरेजेस कितनी होंगी, लीकेजेस कितनी होंगी. सो आई थिंक दैट्स द मेन रूट कॉज दैट आई कैन थिंक ऑफ. आई मीन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. इट मेक्स ऑल द सेंस इन द वर्ल्ड, और ऐसा ही है और ऐसा ही है प्रैक्टिकली. जब आप जिन लोगों को जानते हैं जिनकी ज़मीनें हैं, तो वो होते शहरों में ही हैं. रिफॉर्म की आपने बात की, थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पर आऊँगा. थोड़ा सा शायद मुतनाज़ टॉपिक भी हो, बट being a capitalist and having seen market forces work well across industries, agriculture में डिस्पाइट द फैक्ट कि सब्सिडीज इतनी दी जा रही हैं, आउटपुट काफ़ी पुअर है. सो टू बिगिन विद हम गैस की सब्सिडी देते हैं फर्टिलाइजर कंपनीज को, फिर हमारा लेट्स से इनपुट्स पर टैक्स नहीं होता. पानी जो है, आबियाने की जो टोटल कलेक्शन है पूरे मुल्क में, वो इतनी कम है, कुछ बिलियन रुपए, उससे तो इरीगेशन डिपार्टमेंट की तनख्वाहें तक कवर नहीं हो रही. तो हम एक्चुअली पानी नेगेटिव कॉस्ट में दे रहे हैं. अगर वही हम जो ट्यूबवेल अगर डीजल पे चलाया जाए उसको वर्सेस आबियाने को कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल को 15-20 टाइम्स का फ़र्क है. तो मे बी अगर 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 पानी 10 रुपए का होना चाहिए तो 1 रुपए का मिल रहा है वो. फिर उसके बाद फेडरल इनकम टैक्स तो है नहीं, और प्रोविंशियल इनकम टैक्स की भी कलेक्शन नहीं हो रही. फिर ऊपर से सपोर्ट प्राइसेस भी दी जाती हैं, वो अब 20 साल से रुक रही हैं, पर हमेशा तक से तो दी गई. तो क्या ये ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे दी गई है एक सेक्टर को कि अब सेक्टर को अपनी ट्रू कॉस्ट और एक ट्रू जो कंपेटिटिव मार्केट में एक ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर है उसका पता ही नहीं है, और इन बेसाखियों की वजह से वो सेक्टर compete करने के काबिल ही नहीं रहा है. इज दैट ट्रू? देखें जुनेद, not many people would like me for this, especially agriculture sector के अंदर जो बैठे हुए हैं, but I think your question, the answer is yes, and I'll tell you why. But उसके भी there are few things that needs to be done before making this happen. Subsidies जो है ना, एक तो नंबर वन उनकी डायरेक्शन भी ठीक करने की ज़रूरत है. जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, आज के दिन हम वाटर स्कार्स कंट्री हैं, बट सोलर के ऊपर, सोलर ट्यूबवेल के ऊपर सब्सिडी है. सो 24-24 घंटे फ्लडिंग हो रही है क्योंकि ऊपर सोलर लगा हुआ है, बिल नहीं आ रहा. सो आई थिंक थोड़ी सी रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है, कई जगहों पर लगाने की ज़रूरत है. और सब्सिडी अगेन इज समथिंग विच इज़ मेंट टू बी शॉर्ट टर्म, कि एक नया सेक्टर है, लेट्स से कोई नई इनोवेशन आई है, उसको हमने एक स्केल पे लेके जाना है, स्ट्रगल कर रही है शुरू में, यू गिव सब्सिडी, यू स्केल इट अप एंड देन यू टेक दिस सब्सिडीज बैक. दैट इज़ अ रियल कॉन्सेप्ट जो कि होना भी ऐसे ही चाहिए. सो आई फील कि येस, बहुत ओवर सब्सिडाइज रहा हुआ है सेक्टर. इसको गवर्नमेंट मस्ट लुक इनटू इट, बट एट द सेम टाइम मार्केट को ओपन करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से आउटपुट की कहते हैं जी रोटी इतने रुपए की होगी, या आप कहते हैं जी सब्जी की यही प्राइस होगी, सुपर नहीं जाएगी, तो द प्रॉब्लम इज विद फार्मर कि अगर उसको आप टैक्स भी करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आप उसको सब्सिडीज भी उससे ले लेंगे, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऊपर चली गई, लेकिन जो उसकी प्राइस सीलिंग है वो भी रीच कर गई. सो इवेंचुअली दे लूज, राइट. सो आई थिंक ये दो चीज़ें हैंड इन हैंड होंगी, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क. सो सब्सिडीज अगर कम करते हैं, टैक्सेशन फॉर दैट मैटर इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट ऑल्सो मीन्स कि मार्केट को लेट इट ऑपरेट एज एन ओपन मार्केट. मेक सेंस. व्हाट अबाउट टैक्स? आई मीन बात आपकी ठीक है कि ऑन पेपर हमें बात नजर नहीं आती ऑन द सर्फेस, लेकिन डिप्टी कमिश्नर लेवल पर प्राइस सेटिंग होती है हर एरिया में. तो सो देयर इज एन अपर कैप एज वेल, एंड देन देयर इज अ सब्सिडी एज वेल. एंड अगेन वही वाली बात जो मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट ने एक चेक पोस्ट बनाई हुई है,
और उस पर ट्रैफिक जैम भी हो रहा है और उस पर डिसीजंस भी, जो ट्रैफिक डायरेक्ट हो रहा है वो भी उल्टी पुल्टी डायरेक्शन में हो रहा है बार बार है। ये एक सेक्टर में नहीं है, बीसीओ सेक्टर्स में जहां जहां गवर्नमेंट प्राइस सेटिंग में या वॉल्यूम सेटिंग में जाएगा। व्हाट अबाउट टैक्सेशन? एग्री पे टैक्सेशन आपके ख्याल से इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, और क्या इससे भी एक लेयर ऑफ एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि जो इनएफिशिएंट प्लेयर है वो मार्केट से एग्जिट होगा और ज़्यादा एफिशिएंट प्लेयर्स एंटर होंगे? बिल्कुल। देखें जुनेद, इस पे तो कोई देयर इज नो सेकंड थॉट कि जब भी टैक्स आता है ना तो एक सिस्टम में एफिशिएंसी आती है। यू पिक एनी सेक्टर, जब भी टैक्स आएगा तो एक एफिशिएंसी आएगी, बिकॉज जो भी इम्पैक्ट होंगे दे विल पुश देमसेल्व्स हार्ड, दे विल मेक श्योर कि इकोनॉमिकली वायबल चीज़ें रहें, एंड दे विल फाइंड आउट वेज जहाँ अपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देंगे या अपने रेवेन्यूज इंप्रूव करना शुरू कर देंगे। इसी तरह अगर टैक्सेस एग्रीकल्चर में आते हैं, सर्टेनली देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर टू इम्प्रूव यील्ड्स, राइट। अगर वो नहीं करते तो वो होगा, तो एक तरह से सिस्टम में एफिशिएंसी तो आएगी मेरे ख्याल से। बट द चैलेंज इज व्हेन इज द बेस्ट टाइम, राइट, और किस तरह टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस कराना है। इन माई व्यू इट शुड बी सेगमेंटेड रादर देन आप कहें कि जी ब्लैंकेट टैक्सेस। सर्टन पॉकेट्स होनी चाहिए, मे बी क्रॉप वाइज कर सकते हैं या इवन ग्रोअर सेगमेंट वाइज, लैंड एकरेज वाइज, देयर मल्टीपल वेज टू डू दैट। सो इट शुड बी जो प्रोग्रेसिव। रेगुलर इनकम टैक्स है उसमें भी तो स्लैब्स हैं कि एक सर्टेन इनकम लेवल तक टैक्स नहीं लगता, उसको आप लैंड होल्डिंग की बेसिस से जोड़ सकते हैं। और अब तो सैटेलाइट इमेजरी अवेलेबल है, गवर्नमेंट 2 डिफरेंट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, दोनों आपको, अगर आपने खास तौर पे डिजिटली मैप एक दफ़ा कर ली लैंड होल्डिंग्स, तो हर साल वो एग्जैक्ट बताएगी कि किस दिन कितनी हार्वेस्ट हुई और उस दिन मार्केट में क्या प्राइस थी। तो डिटर्मिन करना तो अब मुश्किल नहीं रहा इनकम लेवल को। हाँ, एज यू सेड के स्ट्रक्चर कर सकते हैं स्लैब को, एंड दैट कुड बी बाय क्रॉप और बाय लैंड। बिल्कुल ऐसे ही है जुनेद। आई थिंक टैक्सेशन जो है ना बहुत सारे ड्राइव कर सकती है गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर सब्सिडीज देनी है तो आप जो चीज़ें हैं जो कि लेट्स से, नॉट सेइंग राइस, बट लेट्स से राइस की हमने बात की है, वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब यूज़ कर रही हैं, सो मे बी अगर आपने टैक्सेशन डाली है, मे बी लुक एट दोज डायमेंशंस, राइट, क्योंकि उधर रेवेन्यू कैप भी नहीं है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, यू कैन चार्ज प्रीमियम एज वेल। एट द सेम टाइम नई क्रॉप्स है, लेट्स से हम कहते हैं वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, right, fruits and vegetables, sesame, all those crops, maybe put your subsidies there ताकि people start moving from these crops to these crops, और वो multi crop culture एक develop हो जाए in the country. So I think, yeah, to your point, I agree कि system में एक efficiency आता है, and nobody can deny it because this is proven. हर industry में जब भी taxation लगी है, शुरू में hit आया, but eventually market forces have normalized things और उसका फायदा ही हुआ है, और most importantly government के लिए कलेक्शन हुई है जो कि सर्टेन एरियाज में उनको फिर चैनल भी कर सकती हैं। बट अगेन दिस नीड्स टू बी डन विद अ थॉरो कंसल्टेशन विद इंडस्ट्री कि किन किन एरियाज में लगना चाहिए, कैसी जोग्राफीज, किन क्रॉप्स के ऊपर लगना चाहिए, किन सेक्टर्स को इम्पैक्ट होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या आई थिंक यूजुअली फिर ये होता है कि देखें डबल टैक्सेशन का भी रिस्क होता है कि अगर आप इनपुट्स पे भी लगा दें एंड जो आउटपुट बिक रही है उस पर भी लग जाए, तो आई थिंक एंड ऑफ द डे जो मिडिल मैन फार्मर होगा, फार्मर विल गेट इम्पैक्टेड द मोस्ट। सो आई थिंक दिस नीड्स टू be thought carefully, and with consultation इसके ऊपर for sure they should be thinking about it. Great, this was I think a great lay of the land जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। तो ज़ीशान बताएं, आप लोग क्या एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, या what is exciting you the most about what will happen in agriculture in the next 1-2-3 years, या कौन से most exciting projects हैं जिन पर आप खुद ही personally involved हैं? Absolutely. So I think there's a whole list that I am personally excited about. और उसमें 2-3 मैं बताता हूँ। सबसे नंबर 1 तो है इज रिलेटेड टू इंक्लूजन। आई थिंक मैंने एक चैलेंज की बात नहीं की कि इंक्लूजन, स्पेशली फीमेल इंक्लूजन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑल्सो, बट पूरे मुल्क के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल इसकी मैं ये देता हूँ कि बांग्लादेश का GDP हमसे $100 बिलियन ज़्यादा है, राइट, एंड देयर वाज अ रिसर्च एंड वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज फीमेल इंक्लूजन। 35% फीमेल्स इन द वर्क फोर्स वर्सेज 18% फॉर पाकिस्तान। दोनों के वर्कफोर्स साइज सेम है, 70 मिलियन ही है, लेकिन वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस $100 बिलियन डिफरेंस was female inclusion. So I think एक तो inclusion की बात करें तो उसमें हम we doing a project called Nazdeek projects, Nazdeek franchises. The idea is and the concept is we want to create 5,000 entrepreneurs in next 5 years, mainly females and youth. और उसका हम rural areas में अपनी छोटी छोटी उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे टू ओपन अप अ फ्रेंचाइज। सो एज आई मीन दे वोंट हैव टू इन्वेस्ट मच। हम बैंक से भी वी टॉकिंग टू मल्टीपल बैंक्स टू गिव देम इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जिसके तहत इमेजिन अगर हमने 5,000 का टारगेट रखा है नेक्स्ट 5 ईयर फॉर यूथ एंड फीमेल्स,
उसमें से आई से 50% भी फीमेल्स हैं, तो 2500 देहातों में रूरल फीमेल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करें. सो आई थिंक दैट्स अ पैशन प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग फॉर. एंड मैं अपनी टीम को भी कहता रहता हूँ कि देखना ये वो प्रोजेक्ट है जो जिस पे हमें सितारे इम्तियाज मिलेगा. सो लेट्स सी, दैट्स वन. सेकेंडली, आई थिंक इन टेक्नोलॉजी वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क. वी लॉन्च्ड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड न्यू फार्मिंग इकोसिस्टम. द आइडिया वॉज कि फार्मर की ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. उसको क्रॉप इंश्योरेंस भी चाहिए, उसको लैंडिंग भी चाहिए. सो वी केम अप विद अ मॉडल जिसकी हमने ऐप भी डेवलप की कॉल्ड क्रॉप वाइज, जिसके थ्रू फार्मर कैन गेट ऑल द सर्विसेज एट वन प्लेस. फिजिकली भी एक हमारा हब है इन ओकाड़ा एंड ऑल्सो थ्रू द एप्लीकेशन एज वेल. Interestingly, सबने, I still remember when we started launching it, the first thing I heard was this will never be done in agriculture sector. Farmers तो यूज़ ही नहीं करते, वो ऐप कैसे यूज़ करेंगे. आज के दिन में it has become Pakistan's largest agriculture application. 1 million plus downloads हैं and it offer multiple benefits to farmers. एक तो सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन. पिक्चर खींचेंगे, AI बेस्ड मॉडल के थ्रू उनको पता चलेगा क्या डिजीजेस हैं और उसके अगेंस्ट उनको मेडिसिन भी रिकमेंड हो जाएंगी. एंड नॉट ओनली दैट, they can get them delivered at their doorstep, right? So we brought this concept to Pakistan through Syngenta, and I was fortunate कि एक बड़ी अच्छी टीम बन गई जिसने ये सारा किया. प्लस उसके अलावा वेदर एडवाइजरी के ऊपर व्हाट आर द राइट स्प्रेइंग टाइमिंग्स, फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू दैट ऐप. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम उसके ऊपर कम्युनिटी बिल्डिंग, जिस तरह आपने बात की ना, हम कॉपरेटिव्स की हमने बात की थी. सो वी आर डूइंग अ सोशल एलिमेंट ऑफ दैट एज वेल, जहाँ पे हम कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू करते हैं. एंड वी फील वन कंपनी Syngenta कैन मेक बिग डिफरेंस. इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. कुछ अर्सा पहले हमने मार्केटिंग टीम से मैंने नंबर्स किए. मैंने कहा बताएं एवरी टाइम वी ग्रो व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट वी मेकिंग ऑन द GDP. सो टर्न्स आउट, एंड वी हैव अ होल मैथ, किसी ने वेरीफाई करनी है तो वी कैन सिट विद देम. एवरी टाइम वी ग्रो बाय 20%, वी आर एडिंग 0.05% टू Pakistan's GDP, which I thought is very very powerful and very impactful. So I think डिजिटल की मैंने बात कर ली, टेक्नोलॉजी की बात कर ली, एंड ये नज़दीक सेंटर्स की मैंने बात कर ली. सो आई थिंक दीज आर द 3 पैशन प्रोजेक्ट्स विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. प्लस उसके अलावा ज़ाहिर है लॉट ऑफ थिंग्स, बायोलॉजिकल, जिस तरह मैंने कहा, इट्स अ बिग स्पेस फॉर पाकिस्तान एंड आई थिंक पाकिस्तान नीड्स इट. उसके ऊपर हम बड़ा एक्टिवली गवर्नमेंट से डिस्कशन कर रहे हैं कि जी ओपन द इनोवेशन सो दैट दीज प्रोडक्ट्स कैन कम इनटू पाकिस्तान एज वेल. एक्सेलेंट, ज़बरदस्त. सब सारे के सारे जो हैं एक्साइटिंग इनिशिएटिव्स हैं, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जिसको जूं कवर करते जा रहे हैं, बार बार यही बात सामने आ रही है कि तकरीबन 85-90 बिलियन डॉलर का ये सेक्टर है, और इस सेक्टर के हर सेगमेंट में कम से कम 50% की इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ऑलरेडी है आज की टेक्नोलॉजीज के हवाले से. उसमें कुछ हद तक रेगुलेटरी अनलॉक्स हैं, कुछ हद तक टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, चाहे वो खुद ओनर्स हैं वो हिस्सा लें इसमें, या प्रोफेशनल्स हैं जो इस फील्ड में आए. सो अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ज़्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में नहीं है दिन में जिसमें हर साल का 40-45 बिलियन डॉलर का इंक्रीमेंटल वैल्यू कैप्चर अवेलेबल है. सो जो आई होप के more and more people get excited and enter this space, and I'm so happy, Zishan, you're a friend, a former colleague, के आप फ्रंट लाइन पे हैं, आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं. विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक यू एंड योर टीम एट Syngenta फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड काउंटिंग. थैंक यू वेरी मच जुनेद. एंड आई कीप ऑन सेइंग कि देखें, आपने तो 40-50% की बात की ना, 10% भी हम अप्रूव कर लें तो 8 बिलियन डॉलर IMF को हम भूल सकते हैं नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ओनली बाय फोकसिंग ऑन वन सेक्टर. एंड आई थिंक इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई कैन अश्योर कि अगर इसमें अच्छी राइट इंटेंशन से विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स किया जाए तो 20-25% इम्प्रूवमेंट इज़ नथिंग. इन नेक्स्ट 3 years वी कैन डू दैट. बट ज़ाहिर उसमें विल चाहिए, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड. बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड इंशाल्लाह आई थिंक आई डू फील कि दिस सेक्टर विल मेक अ बिग डिफरेंस इन पाकिस्तान. It absolutely will. It absolutely will. And thank you so much, Zishan. And to all our viewers, thank you so much for joining us. आपके अगर कुछ सवालात हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एंड स्पेशली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड कमेंट्स फॉर ज़ीशान, वो हमारे कमेंट्स में ज़रूर डालें. एंड आई इनवाइट यू टू क्लिक सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर कम्युनिटी. थैंक यू एंड खुदा हाफिज़. थैंक यू जुनेद. थैंक यू व्यूअर्स. अगर आपको ये बात इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारी LinkedIn कम्युनिटी ज्वाइन करें, एंड फॉलो अस ऑन आवर YouTube पेज फॉर पाकिस्तान एंड काउंटिंग.